السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وإذا مرضت فهو یشفین۔ عزیز پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں کچھ دین کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سارے نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز پیارے بچوں، اس لاک ڈاؤن سیریز میں میں ایک نیا ٹاپک لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں گے اور اس سے متعلق جتنے بھی سوالات پوچھے جائیں گے کما حقہ جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ محترم حاضرین، ارشاد نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ای الناس اشد بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ انبیاء اکرام کو آزمایا گیا، اس کے بعد صالحین، اس کے بعد جس کا جس قدر ایمان مضبوط رہے گا اسی قدر اس کو آزمایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ضرور آزماتا ہے۔ آزمانا بولے تو کیا ہے؟ ٹیسٹ لیتا ہے، اس کے ایمان کو دیکھنے کے لیے، اس کے تقوی کو دیکھنے کے لیے، اس کی دینداری کو دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا امپورٹنس دے رہا ہے، اس چیز کو دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی زندگی میں مختلف طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ٹیسٹ لیتا ہے۔ اسی میں سے ایک بیماری ہے۔ انسان بیمار ہوتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کی اس بیماری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے اجر و ثواب میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کے گناہوں کے معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہ بیماری اس کے معافی کا ذریعہ ہے، اس کے اجر و ثواب میں بڑھوتری کا ذریعہ ہے، اس کے درجات میں بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ ہم پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آج کا ماحول ایسا ہے، اگر کوئی بیماری آ گئی، تھوڑی سی پریشانی اس کو لاحق ہو گئی تو فلاں کے دربار، اس کے دربار، اس کے دربار میں جا کر اپنے ایمان کو گنوا بیٹھتے ہیں، جو دولت اسلام ہے اس کا خون کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار لوگوں کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا، من یرید اللہ خیرا یصب من، اللہ تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو آزماتا ہے، اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر وہ بندہ صبر کر کے اللہ کو یاد کر کے اس ٹیسٹ میں پاس ہو جاتا ہے، اس مصیبت میں پاس ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالی اس کے اجر و ثواب کو معاف کرتے ہیں۔ بہرحال ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حقوق عائد ہوتے ہیں۔ حق المسلمی علی المسلمی خمس، 5 چیزیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر واجب اور ضروری ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آئیے ہم مختصر طور پر دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز رد السلام، سلام کا جواب دیں۔ جاننے والا ہو یا انجان ہو، اگر آپ کو سلام کرتا ہے اس کا جواب دینا آپ کے لیے فرض بنتا ہے، ایک مسلمان کا حق ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ جب کوئی سلام کرے اس سے بہتر انداز میں اس کا جواب دینے کی کوشش کیجئے، یا نہیں تو جیسے وہ سلام کیا ہے اس حد تک تو جواب لوٹانے کی کوشش کیجئے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد وَتَشْمِيَةُ الْعَاطِشِ، کہ ایک اسلامی حکم ہے، میں سمجھتا ہوں اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ اگر میں چھینکتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں تو سامنے والا اس کا کیا جواب دے؟ یرحمک اللہ، دعا دے۔ جب وہ بندہ سامنے والا ہمارے چھینکنے پر ہمارے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحم و کرم کی دعا مانگ رہا ہے، تو ہم اس کے احسان کی وجہ سے ہم بھی اس کو دعا دیں
उसके एहसान की वजह से हम भी उसको दुआ दे, यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। तो ये तरीका है, एक मुख्तसर इस्लामी अदब है, इससे आपस में ताल्लुकात मजबूत हो जाते हैं, एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है। उसके बाद व इजाबतु दावा, तीसरी चीज जो तीसरा हक है वो इजाबतु दावा, अगर कोई दावत देता है इज्जत के साथ उसकी हम दावत को कबूल करें। आमतौर पर हम उन्हीं लोगों की दावत को कबूल करते हैं जो हमारी दावत पर लब्बैक कहा हो सकता है जब हम उसको दावत दिए हैं किसी परेशानी में मुब्तला था, इसकी वजह से वो नहीं आ सका, लेकिन हम क्या समझते हैं वो हमारी दावतों को नहीं आया, हम उसकी दावत को नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, जब वो इज्जत के साथ हमें दावत देता है तो हक बनता है, एक इस्लामी अदब है कि हम उसकी दावत को कबूल करें। व इयादतुल मरीज, मरीज की इयादत करें। पांचवी चीज वत्तिबाउल जनाइज, अगर माशरे में किसी की फौत हो जाए, रिश्तेदारों में किसी की वफात हो जाए, उसके जनाजे को जाना भी, नमाज अदा करना, उसके साथ जाना, कब्रिस्तान तक जाकर दफन करके आना, ये बहुत बड़ा कार्य खैर है मेरे भाइयों, हमारे लिए भी फायदा। और जनाजे के लिए जो मैयत है, अगर उसके जनाजे में 40 वाहिद लोग नमाज अदा करेंगे, अल्लाह तबारक व ताला उसकी मगफिरत कर देगा, उसके गुनाहों को माफ अता फरमाएगा। मेरे भाइयों, जब हम जाएंगे तो हमारे लिए भी 2 क़िरात के बराबर सवाब अल्लाह तबारक व ताला लिखेगा। हम तो इयादत करते हैं, हम अपने जान पहचान लोगों की इयादत करते हैं, रिश्तेदारों की इयादत करते हैं, लेकिन जब हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अगर हम मुताला करेंगे तो अल्लाह के नबी मुसलमानों के साथ साथ यहूद और नसारा की भी इयादत करते थे। एक वाकया आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत एक यहूदी लड़का किया करता था। वो बीमार हो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर को गए इयादत के लिए। देखो इससे क्या बात मालूम होती है, हम सिर्फ मुसलमानों की नहीं गैर मुस्लिमों की भी इयादत करें ताकि उससे इस्लामी दावत देने के लिए रास्ते आसानियां हो जाती हैं। अल्लाह के नबी गए, बैठे और उस बच्चे को इस्लाम की दावत देना शुरू किया, इस्लाम की दावत दिया। वो बच्चा अपने बाप की तरफ देखा कि वो दिल ही दिल में इजाजत चाह रहा था। उसके बाप ने कहा तुम अबुल कासिम की बात मान लो। वो बच्चा ये बात सुनना था, फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुन लिया और इस्लाम मुशर्रफ इस्लाम हो गया। अल्लाह के नबी उसकी इयादत करते हुए बाहर आए और कहने लगे, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने एक बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया। तो रास्ते हमवार हो जाएंगे जब हमारे ताल्लुकात गैर मुस्लिमों से अच्छे रहेंगे, हम उनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, इयादत के मामले में उनकी मुसीबत हाल में हम मदद करते रहेंगे, तो हमारे लिए दीन इस्लाम की बात को पहुंचाने में बहुत आसानियां और बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। इयादत के लिए मुनासिब वक्त तलाश किया जाए। हो सकता है वो उसके आराम का वक्त हो, ऐसे वक्त में ना जाए। हो सकता है वो इलाज के लिए बाहर जा रहा हो, ऐसे वक्त में ना जाए। मुनासिब वक्त हम लोगों से पूछ ले, उनके घर वालों से पूछ ले, क्या मरीज या इस्तिताअत रखता है कि हम उससे बात कर सके। ऐसे वक्त मुनासिब वक्त का तलाश करके उसकी इयादत करें। अल्लाह ताला की जात पर उम्मीद दिलाए मरीज को। आमतौर पर हम मरीज की इयादत करने के लिए जाते हैं, बीमार की इयादत करने के लिए जाते हैं, तो फला की बात, दुनिया की बात, फला आदमी की बात वहां गीबत करते हैं, चुगलियां करते हैं, हमारे पर्सनल मैटर्स बात करते हैं, उनके घरों के पर्सनल मैटर्स बात करते हैं। मेरे भाइयों, उससे बीमार की बीमारी में मजीद इजाफा होता है। आप तो इयादत करने के लिए आए, आप उम्मीद दिलाएं, उसको परेशान ना करें, उसकी आराम में खलल अंदाजी ना हो, उसका मर्ज और भी बढ़ सकता है। मेरे भाइयों, आपके परेशान कुन बातों की वजह से मरीज से अच्छी गुफ्तगू करें, मोटिवेट करें, हिम्मत दिलाएं। आमतौर पर किसी की इयादत के लिए जब हम जाएं
तो फला आदमी इस बीमारी से मर गया, फला आदमी ये आने की वजह से बहुत परेशानी में मुब्तला हुआ है, ऐसी वैसी बातें करते हुए उसको और मजीद कमजोर करते हैं। आपको मालूम है कई बीमारियां सिर्फ डर की वजह से आते हैं, कई अमवात सिर्फ डर की वजह से हो रही हैं। मेरे भाइयों, हम उसको मोटिवेट करें, अल्लाह से उम्मीद दिलाएं, उसको अच्छी बात करें, उसके सामने ऐसा बताए कि तुझे कोई मर्ज है ही नहीं, अल्लाह शिफा देने वाला है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, वइज़ा मरिस्तु फहुवा यशफीन, जब मैं बीमार होता हूं तो मुझे शिफा देने वाला कौन है? तू ही है, तेरी जात है। अल्लाह की जात शिफा देने वाली है, बीमारी देने वाली भी अल्लाह की जात है और शिफा करने वाली भी अल्लाह की जात है। तो हम डरें क्यों? मोमिन का मामला ही बड़ा अजीब है। हम हिम्मत से काम लें, हिम्मत से काम ले। आज तो मामला ऐसा है कि हम मरीज की इयादत करने जाते कम है, सेल्फियां उतरने जाते और वहां गपशप करने के लिए जाते हैं, बेकार की बातें करने जाते हैं। ये तमाम चीजें सवाब नहीं बल्कि अजाब का बाइस भी बन सकते हैं, गुनाह का बाइस भी बन सकता है। मरीज की इयादत करने के लिए जाते हैं तो देर तक ना बैठे, हो सकता है उसके परेशानी हो, वो तुम्हारी बातों से बोर महसूस करे, या नहीं तो ऐसा ना हो कि आपकी बातों की वजह से उसके अंदर मजीद कमजोरी महसूस ना हो। इस हद तक बात करें और दुआ की दरखास्त करें, दुआ की दरखास्त करें मरीज से। अगर मरीज उस मर्ज के हालत में अल्लाह तबारक व ताला को याद करता है तो अल्लाह ताला उसकी इबादत को बहुत जल्द कबूल करता है, उसकी दुआओं को बहुत जल्द कबूल करता है। तो जब हम अपने लिए भी दुआ करवाएंगे, दरखास्त करेंगे, हमारी भी दुआ कबूल हो सकती है। तो मरीज से अपने लिए भी दुआ करवाए, और जब मरीज की इयादत करने के लिए गए हैं, मरीज के सामने बैठकर उसके जिस्म पर हाथ रखकर अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियका ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह, ये दुआ पढ़िए, उसको हिम्मत दिलाइए, मोटिवेट कीजिए। मरीज के लिए फौरन इलाज का इंतजाम किया जाए। एक आदमी अपने घर बार को चलाता है, अपने घर बार की जिम्मेदारी है, वो खुद अपने लिए इलाज करवाने के लिए उसके लिए माली ताउन की जरूरत पड़ती है, वो मजबूर होता है, वो दूसरों की हमदर्दियों का मोहताज होता है। हम इस चीज को ख्याल रखें। अहले सरवत और ऐसी ट्रस्टें जो लोगों की मदद करते हैं वो इन चीजों का ख्याल रखें, उनकी मदद करें, उनको फौरन इलाज करवाने का बंदोबस्त करने की कोशिश करें। आखिरी चीज, माली ताउन कीजिए। आज के माहौल में जो लॉकडाउन का ये दौर चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोगों के काम काज सब बंद हो गए हैं, लोग पैसों के मोहताज हैं, जो बीमार हो गए हैं। कोशिश कीजिए कि हम अपनी तरफ से उन लोगों की कुछ न कुछ मदद कर सकें। बहरहाल ये मरीज की इयादत के कुछ आदाब है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।